नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर के दो नए लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं दोनों अपडेट के बारे में। दोस्तों पहला अपडेट है ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी की तरफ से गोवा स्टेट में कन्वेंटेशन होने जा रहा है, जिसकी डेट 24/11/2024 रखी गई है। दिन संडे है। सुबह 10:30 बजे से यह कन्वेंटेशन किया जाएगा। इनवाइट है सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को। यह लोकेशन है संतोषी माता मंदिर हॉल, न्यू बाध्य बास्कोट गामा, गोवा में संपन्न किया जाएगा। तो दोस्तों यह गोवा में प्रोग्राम रखा गया है कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कमांडर अशोक रावत जी संबोधित करेंगे गोवा में। दिन है संडे 24/11/2024 को। समय है 10:30 बजे। तो देख सकते हैं सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इनवाइट किया गया, जो भी गोवा या गोवा के आसपास रहते हैं इस सम्मेलन में ज़रूर भाग लें। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से रिक्वेस्ट है। वहीं दूसरी नेशनल एजुकेशन टीम कमांडर अशोक रावत जी की बैठक जो होनी है वह केरला में होगी 27/11/2024 को। समय है 10:30 बजे। तो एनएसी नेशनल प्रेसिडेंट कमांडर अशोक रावत जी इस सभा को संबोधित करेंगे और पेंशन धारकों को जागरूक रहने का आग्रह करेंगे। ये है 27/11/2024 वेडनेसडे। समय है सुबह 10:30 बजे। केरला में यह एक सभा की जाएगी एनएसी की तरफ से। उसके बाद कमांडर अशोक रावत जी की जो तीसरी सभा है नेशनल एजुकेशन कमेटी की, यह है तमिलनाडु में। यहाँ पर भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ कमांडर अशोक रावत जी बैठक करेंगे। यह डेट है 1/12/2024। तो दोस्तों यह दिसंबर में की जाएगी। दिन है संडे। समय है 10 बजे से लेके 1 बजे दोपहर तक। तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पे तमिलनाडु के आसपास रहते हैं इस सभा में ज़रूर भाग लें। कमांडर अशोक रावत जी सभी पेंशनरों को संबोधित करेंगे और पेंशन वृद्धि के बारे में बताएंगे। दोस्तों दूसरा अपडेट यह है कि 72वां स्थापना दिवस ईपीएफओ को मनाया गया। यहाँ पर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने यह स्थापना दिवस मनाया है। We do have issues and challenges. I do understand. I do know that under the guidance of Honorable Minister, we are improving the IT infrastructure. We are bringing in systemic reforms, and we will be seeing the results of these reforms more and more within a few more weeks' time. In this context, I would like to congratulate EPFO on the recent reforms which have already taken place. Many of them were shown in the video, and some of them I would like to again mention because they all happened under the 100 days program and under the able guidance of the Honorable Minister. The auto settlement of EPF advance claims, the multi-location claim settlement, the centralized pension payment system, which we will have in place very soon by end of December, beginning of January, the digital life certificate submission drive, the settlement of physical claims without UAN in case of death cases, and so on. I do understand that we are focusing a lot on IT, and that is a challenge before us. We are improving the IT software and the hardware both, and this is being very clear members and in the subcommittees, and we must all work together in unison as a team to bring about all the systemic improvements and the reforms in EPFO. At the same time, we are also very proud of the numbers who join EPFO, and in the last six and a half years alone, we've had something like 64 million new subscribers to EPFO, and every month a figure between 10 to 12 lakh
new subscribers join EPFO. These are the new subscriptions every month. So this is indeed a great achievement and is also reflective of the kind of social security which EPFO offers. The number of contributing establishments has grown in the year 23-24 over the previous year at a rate of 6.6%, and the number of contributing members have grown again at a rate of a little better than the 6.6 at 7.6%, and we have also seen good improvement, more than 55% in realizing the area dues. However, while all this is very noteworthy and very something to give us pride in the organization, that we are working for this organization and for our country people, we also recognize that we have to do many more things to make this the best social security fund in the world. And for that, there is a reform plan in place, and by January 2025, we are looking forward to having an upgraded software and hardware system which will take care of a number of our 140 करोड़ की जनसंख्या का हमारा देश एक संकल्प से आगे बढ़े, और इसलिए मोदी जी ने कहा कि हम देश के 140 करोड़ की जनता, हम 5 प्रण लेते हैं। 5 प्रण के आधार पर हम हमारे देश को विकसित बनाएंगे। पहले कहा कि विकसित भारत हमारा संकल्प है। दूसरा प्रण लिलवाते हुए कहा कि हम गुलामी की मानसिकता को छोड़ देंगे। ये देश हजारों साल तक परतंत्र रहा है। कभी हमारे पर हुणों ने शासन करा, कभी हमारे पर शकों ने शासन करा। 1000 साल तक हमारे पर आक्रांताओं ने शासन करा। 240 साल तक अंग्रेजों ने हमारे पर शासन करा। इतनी गुलामी के बाद 1947 में हम आज़ाद हुए हैं। ये देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए देश कायम आज़ाद रहे, नई सोच नए विचार से हमारा ट्रेडिशनल, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और तब मोदी जी ने कहा कि हम गुलामी की सभी चिन्हों को छोड़ देंगे। तीसरा प्रण लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा, यहाँ पर ईपीएफओ के पास 25 लाख करोड़ रुपए फंड के रूप में जमा हैं, लेकिन फिर भी ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की मांग को सरकार पूरा नहीं कर रही है। कई बार ईपीएफओ ने, श्रम मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि हमारे पास फंड नहीं है, इसलिए हम ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन नहीं बढ़ा सकते। हमारा ईपीएफओ का फंड आज 25 लाख करोड़ है, उससे 3-4 टाइम ज़्यादा होगा। यही आपका फंड सोशल सिक्योरिटी भी देगा और नेशन निर्माण में भी कंट्रीब्यूट भी करेगा। तो इस 72वें स्थापना दिवस पर मनसुख मांडविया, जो कि अभी लेटेस्ट में श्रम मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 25 लाख करोड़ रुपए फंड में ईपीएफओ के पास जमा है, लेकिन फिर भी ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ाने में ईपीएफओ और सरकार को क्यों दिक्कत आ रही है। हमको तो लगता है कि ये पैसा जो ईपीएफओ का है, ये पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों के काम में लगाया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशनधारकों के साथ धोखा किया जा रहा है। इस पर सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को यह पैसा दे रही है। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।